کہاں چل ہمارے کروائیں کیا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ياسين وما في الوجود. صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام محمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالمقام الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المزومين. أما اذهبوا بقميصي فهذا ألقوه على وجه أبي صلوات الله. عزیزان محترم، عاشقان امام مظلوم سید الشہداء کربلا و علماء کربلا، یہ بات روز روشن آیا اور ظاہر ہے کہ آواز میں قوت طاقت دینے والا پیدا کرنے والا وہ ایسا متکلم ہے کہ جو نا زبان رکھتے ہوئے بھی اپنے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اس پر عقیدہ کامل رکھنے والا انسان، ایمان رکھنے والا انسان یقیناً اگر کسی بھی جگہ پر بیٹھے خطابت کرے، تقریر کرے تو یقیناً کیسے اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی. یہ وسائل دنیا ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ وسائل جو نہ تو صحیح کہ ٹیلی ویژن ہو لیکن اسی آواز کو ارض و سما تک لوگوں تک نہ پہنچاتے ہیں تو ہمارا نام اللہ نہ کہنا. عزیزو 1,24,000 عام تھا. کتنا تھا؟ صرف ایک پیغام کو پہنچانے والا کون تھا؟ صرف رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے زبان مبارک سے. پروردگار کی طرف سے حکم الہی یہ نازل ہو چکا تھا کہ رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ تک پہنچا چکے ہیں اب آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اب میں کہوں گا کہ یہ رسول کس کو تلاش کر رہے ہیں، رسول کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عزیزو یہی تو کچھ افراد نے اپنے ذہن ناقص میں سوچنا شروع کیا ہوگا کہ جس طریقے سے رسول اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. عزیزو معلوم ہوا کہ دوسرے افراد پر یہ بات حمل کی گئی کہ آج تک جس کو علم دیا گیا تو وہ لے کر بھاگے چلے آئے تھے. میں کہوں گا یہ توہین اسلام ہے، یہ توہین علم ہے. علم ایسوں کے ہاتھ میں جاتا ہی نہیں کہ جو فراری اختیار کرے. تلاش کر رہی تھی تو صحیح وہ آ جائے، علم کا صاحب ابدار آ جائے، اسی کو دیا جائے گا. ایک عام مسئلے کے لیے جب دنیا کا گناہگار انسان اتنے اعتراض پہ اعتراض کرنے لگتا ہے کہ میاں اگر فلاں امام صاحب نماز جماعت قائم کرا رہے ہیں، ان کی تلاوت صحیح نہیں، ان کی قرات صحیح نہیں، اس کے لیے ہم اچھی طریقے سے سوچتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، میاں اس لائق ہیں یا نہیں؟ جو یہ محرام توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ محرام میں جو کھڑے ہو گئے اس لائق ہے یا نہیں، اس قابل ہے یا نہیں؟ تو جب ہم گناہگار خطاکار انسان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب لائق ہوگا تبھی محرام میں جائے گا تو عزیزو نگاہ رسول تلاش کر رہی تھی جو لائق علم کا ہے علی، وہ جب آ جائے گا میں علم دے دوں گا. صلوات توہین اسلام ہو رہی ہے. اگر کسی کو رسول نے اس سے پہلے علم دے دیا ہوتا اور وہ علم کو لے کر بھاگے چلے آئے ہوتے اور فتح نصیب نہ ہوئی ہوتی. نہیں، توہین اسلام ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اسلام ہو رہی ہے، ابھی دیا ہی نہیں. نگاہ رسول وہ دیکھ رہی ہے کہ جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہے عزیزو چیز اسی کو دی جاتی ہے جو لائق ور ہو، جو بے عیب ہو، جو بے خطا ہو، جسی کے دامن پر کوئی داغ دھبا تک نہ ہو. وہی بڑوں کی آواز کو سمجھتا ہے. ابھی تو نہ تو
साले आ गया। रसूल के इतने पैगाम, अली के इतने पैगाम, उनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं कि वो बल्लिग का ऐलान जो हुआ हमारी समझ तक नहीं आया, हमारे कानों तक नहीं पहुंचाया। वो जो सादिकुल अमीन है वो ऐलान कर रहा है, उसके ऐलान को नहीं समझा। गरज ये कि देखा कि हाँ आ गया, तो देखा कि हाँ पुष्ट पर कौन है, मौला अली मुर्तजा सवार हैं, कि ठीक है, और पहुंचा भी वही। कहा दे दीजिए जो आपके हवाले किया था। कहा फिर मेरा क्या होगा? कि मेरा क्या होगा ये आप जाने वो जाने, जिसने मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की है मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। तो ये हजरत बयान करने लगे कि कसम खुदाए वहदहू ला शरीक की, जब मैं इस चीज के नजदीक पहुंचा तो लोगों की निगाहें, लोगों की गर्दनें उठने लगी थी और मेरी तरफ मुतवज्जह होने लगे थे, देखने लगे थे। और देखा किस चीज को जाएगा, तवज्जो फरमाइएगा, देखा उसी चीज को जाता है कि जो ना अहल अफराद पहुंच जाए उस जगह पर जो उनके लायक चीज ना हो, तो हर एक इंसान की निगाह उठेगी, गर्दन उठेगी, ये कौन आ गया, ये तो यहाँ पर हकदार नहीं था। लिहाजा उन्होंने बयान किया कि जब मैं इस चीज को पहुंचाने के लिए आमाद और तैयार हुआ था तो लोगों की गर्दनें उठने लगी थी। किस वजह से उठने लगी थी? मियाँ ये नाहंजार इंसान इस चीज को पहुंचा रहा है कि जब खुद इसका दामन दागदार है, जो खुदाकार है, गुनाहगार है, ये हमको क्या तबलीग पहुंचा सकता है? सलावत वहीं पर निगाह उठ सकती हैं, वहीं पर गर्दनें उठ सकती हैं। और दूसरा वाकया आपके शार मुबारक में यही हुआ कि जब रहलत रसूल के बाद आपको बज़ाहिर खिलाफत मिली मुसलमानों के इसरार करने पर, तो ठीक है आपने कबूल किया। उसके बाद कहा अरशाई मिंबर कहा जाता था जहां पर रसूल मकबूल जलवा अफरोज हुआ करते थे, और हर एक इंसान ने उनके एहतराम में एक एक सीढ़ी छोड़ दी। अब तो जिसका जमाना आता गया चारों फुल हो गई सीटें। तवज्जो चाह रहा हूँ, हर इंसान ये सोच रहा है अली मुर्तजा जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मियाँ अली मुर्तजा कौन है? मुस्तफा का जानशीन, जा मानी जगह नशीन मानी बैठने वाला, जो जानशीन होगा वो उसी की जगह पर बैठेगा। सफर किया, अब वो नीचे से एक बुजुर्गवान ने कहा कि अच्छा अली और रसूल की जगह पर, रसूल मकबूल की जगह पर, अच्छा मौलाए कायनात ने जैसे ही उसके ये कलमात सुने, निगाहें खुद से उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि ओ नाहंजार इंसान, ओ एतराज कुनंदा इंसान, तू इस मिंबर की बात कर रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है। अली के कदम तो दोषे मुबारक के रसूल पर पहुंचते हैं। लकड़ी का बनाया हुआ मिंबर जो आपका है, हमारा है, इसकी बात कर रहे हो? मेरे तो कदम मुबारक दोषे मुबारक रसूल महबूब तक पहुंच चुके हैं। अब बतलाओ क्या ख्याल होगा? अजीजों पे नहीं। उसके बाद कहा कि ठीक नमाज पढ़ाई जाए, नमाज पढ़ाई, नमाज इस अंदाज से पढ़ाई, इस तरीके से पढ़ाई, इस अंदाज में अदा कराई गई। अदा कराने का तरीका अदा ये था कि सबसे बुजुर्ग हस्तियां जो मौजूद थी उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत पुराने अफराद थे, उन्होंने कहा कसम खुदा की बेऐन ही आज हमने वो नमाज पढ़ी जो जमाने रिसालत में पढ़ा करते थे। यानी तवज्जो फरमाइएगा, यानी मेरी तरफ देखिएगा, तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, जाहिर नहीं होने दीजिएगा। यानी उन बुजुर्ग ने ये साबित कर दिया कि अब तक जो नमाजें पढ़ते चले आए थे दरमियान में फर्क हो गया था। आज अली ने जो नमाज पढ़ाई वो नमाज पढ़ाई जो रिसालत में आपके जमाने में पढ़ा करते थे। ना तो हर एक ये कह सकता था अली कल तक तो इस तरीके से पढ़ रहे थे, आज ऐसे पढ़ाई। मालूम हुआ जैसे अली कल पढ़ता था, रिसालत के जमाने में अदा कराता था, वैसे ही आज भी अदा कराई है। कुरान से पहले अबा अब्दुल्लाह हुसैन का वजूद होना चाहिए था, लिहाजा तज़किरे करबला उसी कुरान पहले आया है, लिहाजा पहले अगर हुसैन आए होते तो तस्करा इसमें दाखिल कर दिया जाता तो माकूल था, लिहाजा ये नामाकूल। जब हुसैन की विलादत नहीं हुई, कुरान पहले आ गया, हुसैन का तस्करा हो सकता है, तो जब कयामत अभी भरपाई नहीं हुई, कयामत का तस्करा कुरान में है, इसको रद्द करो फिर हम मान लेंगे। क्या आपका कहना है? बस अजीजों, इन इस्मत व तहारत को पहचानने के लिए, इनके फजाइल को जानने के लिए इंसान इनका आशिक हो जाए, इंसान इनका अगर विदा हो जाए तो यकीनन इसी दुनिया में सब कुछ मिल सकता है।
इबादत वो मंजिल है जब वो इंसान कदम रखता है तो इबादत के जरिए से सब कुछ हासिल कर सकता है। और यही तो सैयदुल साजिदीन के लिए कहा गया था कि हाँ इतने आबिद गुजार थे, इतने इबादत गुजार थे आप कि नमाज इस अंदाज में पढ़ा करते थे कि घर में आग भी लग जाए तो फिक्र नहीं, बच्चा गिर जाए कुएं के अंदर फिर भी फिक्र नहीं। लेकिन जिसकी इबादत कर रहे हैं उस पर एतकाद कामिल है कि जिसकी इबादत कर रहा हूं वही मुहाफिज है, वही हिफाजत करने वाला है। जहां पर इंसानों की निगाहें जा रही है उस शख्सियतों को पहचाने। और अजीजों, ना तो दौलत की इनको जरूरत थी, न जायदाद की इनको तमन्ना थी, न मनसब की ख्वाहिश थी, इनको तो ख्वाहिश ये थी रब्बुल इज्जत की शनाख्त अफराद करने, पहचानने। न दौलत के अंबार देखना चाहेंगे, दौलत तो इनके यहाँ की खवातीन भी ऐसे लुटा देती हैं कि सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि ये खातून का यह आलम है खदीजतुल कुबरा कि दौलत इस माना में इस्लाम पर सर्फ कर दी जाए। मैं पानी डालता हूँ, आप कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है। अजीज़ो, इस आलम में मेहमान नवाजी हो रही है, कहा नहीं, पहचान गया कि इमाम वक्त अगर हो है तो तैयार हूँ। उसके बाद इमाम हाथ धो रहे हैं, तश्त में पानी गिर रहा है, चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले तश्त में देखो क्या मौला पानी, कहा फिर देखो क्या, कहा ज़बर हक़ीक़ सब, कहा ये लो और अपनी ज़ौजा को क्या। जिसने कि ये कहा था कि जिस इंसान के पास तुम जाते हो, जिसके मानने वाले जाने वाले हो, क्या आज तक उसने कुछ दिया है? मौला गुस्ताखी माफ, मैं उसकी तरफ से माजरत चाह रहा हूँ। अजीजों, जिसके हाथ का धोबन हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाए, हाय उसी के हाथ में हथकड़ियाँ पहनाई गई। अल्लाह अकबर। एक वो ज़माना भी आता है कि जब आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में कांटा टोक डाला जाता है। अजीज़ों, एक लम्हा और बस आपकी ज़हमत तमाम। सैयद सज्जाद जब जिंदान में पहुँचते हैं तो दरोगा जिंदान आपकी इबादत को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि किस तरीके से मैं इनको तकलीफ गुज़र पहुँचाऊँ, परेशान करूँ, क्योंकि ऐसी नौबत पहुँचती नहीं। जब रात के आलम में देखता हूँ तो पूरी रात इबादत खुदा में बसर करते हैं, दिन के आलम में देखता हूँ तो पूरे दिन रोजे में बसर करते हैं। कौन सा ऐसा वक्त है कि जो मैं इनको तकलीफ दूँ? कौन सी ऐसी बहाना मैं तलाश करूं? कुछ नहीं तलाश आता। लेकिन समझा दीजिए, कोई बीवी है कि जो रात के पिछले पहर आकर अरे जिंदान के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और ऐसी गिरियाजारी करती है कि जैसे उसका कोई घर उजड़ गया हो। हाँ अजीजों, आबिद विमान ने कहा कि हम और यहाँ से तो कोई और ऐसी नहीं है कि जो रात के वक्त में निकले। फूबी अम्मा के पास आए, फूबी अम्मा, क्या इन खवातीन में कोई ऐसी औरत है कि जो रात के पिछले पहर अरे जिंदान के दरवाजे पर जाकर बैठ करती है? ना ना बेटा, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दरोगा जिंदान से इतना जरूर कह देना, जब वो बीवी आए तो हमको जरूर मिला देना। हाय अजीजों, आबिदे बीमार ने कहा दरोगा जिंदान, अरे जब वो बीवी आए और गिरियाजारी में मशगूल हो तो मुझको बुला लेना, मुझको सदा दे लेना। रात का पिछला पहर पहुंचा, वो दरोगा जिंदान पहुंचा, ए आबिदे बीमार, वो बीवी आ गई जिसका मैं तज़किरा किया करता था। हाय वो बीवी पहुंच चुकी है। आबिदे बीमार बढ़े, लहजों को समझ गए, अरे ये तो मेरी जद्दे माजदा, अरे फातिमा ज़हरा है। हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगी, ए दादी जान, अरे आप उस वक्त कहाँ थी जब मेरे हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहनाई गई, सकीना के तमाचे लगाए गए, कानों से गोश्त मारे छीने गए, हर बीबी के सर से रिदा छीनी गई। ऐ मेरे लाल, जब से मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, जब से तूने करबला छोड़ी है, तभी मैं तेरे काबिल